हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ जो मैंने इंडियन आर्म फोर्सेस का सीरीज बनाया था जिसमें 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, दैट इज नो योर इंडियन आर्म फोर्सेस, सेकंड इज नो योर इंडियन आर्मी पार्ट 1, उसका पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी, जिसमें मैं प्री ब्रिटिश एंड ब्रिटिश पीरियड का टिल पार्टीशन कवर किया था एंड देयर वाज गुड नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस एंड इनफैक्ट इस सीरीज को कंटिन्यू करने का भी रिक्वेस्ट किया है, विच एनीवे आई हैड प्लान टू डू इट, राइट। तो जिन लोगों ने इसको देखा नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट इन द सेम ऑर्डर. Watch it in the same order in which I presented so that you get a link between the various events that has happened. Now, in today's video, we will cover the history of the Indian Armed Forces post independence. मैंने यहाँ पे Indian Army लिखा हुआ है, but those events are Army, Navy, Air Force तीनों mixed है. So even though I've written it post independence history of the Indian Army, it is actually essentially Indian Armed Forces. So you can suitably see कि each operation, each event may what was the role of Navy and Air Force. That I'm sure you'll be able to do it, right? Now before we do that, let me tell you the registration is open for the next 2 weeks. Air Force OP offline composite batch, which is going to start from 11th November to 23rd November, and its date of reporting will be 10th of November, and departure will be on 23rd afternoon oblique 24th November. 24th November is a Sunday, तो या तो आप Saturday evening को जा सकते हो या Sunday morning को जा सकते हो. So registration is open. This classes will be conducted at Sahasdi Camp Nagpur में. There will be a fully residential batch. Separate hostel for boys and girls are available. 100% individual attention will be given and 500% clarity. Already आपको एफओसी पे वीडियो से clarity का अंदाजा तो लग ही गया होगा. अगर free videos में इतना clarity है तो classes में कितना होगा? Not one word of rote memory. That's a word that I can assure you. The address of the institute is AFOSUP Sahas the camp. It is at Nagpur. You can check Sahas the camp in Google link and you'll get it. And anyone wants to send me a message, I'll share you the details. And in case if you wish to register, you have to contact me or WhatsApp me at this number 9090099035 and share me a WhatsApp message. I'll share you the details. And for the first 25 candidates, there is a special flat discount of 2,500 rupees. To avail this, kindly register fast and do share it with the friends. Right, especially for the NDA, CDS, FCAT and ACC 131 जिनका अभी रिजल्ट आया 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, you will be tremendously benefiting through this training, right? And इसके अलावा there are certain videos that I want you to watch it before you even start your SSB preparation. और उन वीडियो का लिंक को मैंने अपने AFOSUP के टेलीग्राम चैनल पे दिया है, जिसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो. Kindly go through them, share it with friends so that you get a direction. You know, direction is important. Only then आपके efforts में एक एक sense of achievement आएगा. Otherwise बिना direction के हम घूमते रह जाएंगे, right? And in case we have not already shared the AFOSUP YouTube channel, request you to kindly share it. I'm taking a lot of efforts to make these videos. They are not superficial videos, and I'm sure आप इनको जब दूसरे वीडियो से कंपेयर करते हो आपको पता चलता होगा कि इन वीडियोस में there is a lot of clarity and depth. अगर ये वास्तव में है तो एक तो इससे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड लाइक करो so that I get my share of motivation. You know, like you need motivation for your work, I also need motivation to continue making these videos which will turn out to be good in terms of your preparation and right direction. I'll assure you कि आपको मैं कोई भी चीज गलत नहीं बताऊंगा, जानबूझ को तो नहीं बताऊंगा, गलती से हो गया तो हम क्या कर सकते हो, है ना? So that's my assurance to you. Now post independence history of the Indian Army, this is what we were talking. तो मैं पहले बता देता हूँ, इसमें हम इसको एक टाइमलाइन के ऊपर करेंगे ताकि आपको इसको रिटेन करना आसान हो जाए और एक फ्लो में जाएगा ये पूरा का पूरा. So people who have no बैकग्राउंड ऑफ आर्मी, आप लोग इस वीडियो को जब देखोगे तो you'll realize कि there is a flow. So उस फ्लो को ध्यान में रखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी इसको दिखाया था कि हमको अगस्त 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला और 47 में फर्स्ट वॉर ऑफ अपना कारगिल का वॉर हुआ, उसके बाद सेकंड वॉर ऑफ कश्मीर हुआ 1965 में. इसके बीच में 62 नहीं दिखाया बिकॉज ये इंडो पाक को दिखाया हुआ है. 62 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ. तो इट्स ऑल गोइंग इन अ फ्लो. तो विल कवर द सेम थिंग इन दिस फ्लो, नॉट एसेंशियली ऑल दीज पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए उसको कवर नहीं करेंगे. जैसे इसमें
क्या बोलते हैं, संयुक्त एक्सप्रेस का अटैक भी दिखा हुआ, पार्लियामेंट अटैक भी दिखा, इसको नहीं करेंगे. विल टेक इट, आई विल डू इट माय वे, बिकॉज व्हाट इज एसेंशियली आस्क्ड इन द इंटरव्यू उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, बिकॉज एसेंशियली दीज आर नॉट मिलिट्री हिस्ट्री क्लासेस, दीज आर प्रिपरेशन फॉर द एसएसबी, एंड नो द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू वांट टू जॉइन इज अ की थिंग दैट आई कीप सेइंग. एंड इस पूरे बनाने का एम ये है कि बिफोर यू कम टू एएफओसीपी ट्रेनिंग, प्लीज डू दिस सो दैट आई कैन फोकस ऑन द कोर ट्रेनिंग, जिसमें कि आपके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को कवर करना है. किसी बिल्डिंग को बनाना तो फाउंडेशन बनाना जरूरी है, तो इन चीजों को आप पहले से ही करके आओगे, इट विल ट्रेमेंडसली बेनिफिट मी. दैट्स द पर्पस फॉर व्हिच आई एम मेकिंग दिस वीडियोस एंड आई एम मेकिंग इट पब्लिक सो दैट अदर्स कैन आल्सो बेनिफिट, राइट. नाउ इन जो आज मैं ये क्लास लूंगा, इसका कंटेंट को अगर आप लोग मुझे बोलते हो तो आई विल मेक इट अवेलेबल इन दी टेलीग्राम चैनल, है ना. तो इसका जो पीडीएफ्स है वो मैं उधर बना दे दूंगा. I'll get it through official sources, not कहीं से भी लाके चिपका दूंगा. I'll get it, वो provided you want it, you can put a comment here and I'll do that, right? So हम इस पूरे वीडियो को, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस को देख रहे हैं, हम इसमें पहले मेजर वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी एंड पीस कीपिंग्स को देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिफेंस एस्पेक्ट को, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, अदर नोटेबल ऑपरेशंस जिसमें कि आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व था, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज विद फ्रेंडली एंड फॉरेन कंट्रीज. इन हेड्स के अंदर इनको कवर करेंगे. मे बी अगर वीडियो लंबा हो जाता तो वी माइट नॉट कवर सर्टन थिंग्स विच विल डू इट सब्सिक्वेंटली, बट एनीवे एज अ कैंडिडेट यू आर सपोज टू डू इट if you're going for a SSB interview and if you're a real serious aspirant. Simply by saying I'm a armed forces में ज्वाइन करना is my childhood passion, वो सही नहीं होगा. आपको उस पैशन को दिखाने के लिए you must show your aptitude towards military history, learning from those events and having independent analysis. वो जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, आप बोलते रह जाओगे और टीएटी वेटी में उलझ के रह जाओगे टेस्टिंग टूल्स में, राइट. So let's take the first war post independence that happened is Indo-Pak War 1947-48. Now इसके फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, एंड इसका एक जेनेसिस बताता हूँ किस लिए हुआ था. ना हमें पता है द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो ब्रिटिश का था, ब्रिटिश क्वीन क्राउन ने साइन किया था, उसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वाज पार्टीशन एंड टू states or two nations were created. So Pakistan and India, and there was mass migration, a lot of deaths and devastation हुआ था. So इसके अंदर मैंने एक बुक बताया था, Train to Pakistan by Mr. Khushwant Singh. It gives a very moving picture of the entire process of this partition and the trauma that people gone through in that period. But we will not focus there. Now इस period में what had happened is India's Independent Act में the area which was controlled by British India was partitioned between India and Pakistan. और आपको पता है बांग्लादेश बन गया था और उधर से पाकिस्तान बन गया था, पंजाब वगैरह को आधा कर दिया था, रैडक्लिफ ने किया था. ये सब ये हमको पिछले वीडियो में पता है. Now bigger challenge was there were 560 plus, incidentally I think 565 शायद 565 princely states थे, राजा रजवाड़े, जिनको एक ऑप्शन था कि either they can join with Pakistan or they can join with India. So they were given that freedom to choose between India and Pakistan. Most of them came to India, some of them went to Pakistan, but 3 princely states ने पंगा किया था. और वो कौन कौन सा आपको पता तो कमेंट लिख के बताओ. तो उन प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा इंटीग्रेट करने का, इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने का जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, है ना. इन्हें लोह पुरुष भी बोलते हैं. तो इनका काम था इन 560 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करने का. नाउ इस प्रोसेस में मोस्ट ऑफ देम डिड, बट 3 लोगों ने पंगा किया. और वो कौन कौन थे? पहला था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जूनागढ़, राइट. हम यहाँ पे हैदराबाद और जूनागढ़ को नहीं बोलेंगे, पहले जम्मू को करेंगे. बट वैसे आपको पता हैदराबाद को एक मिलिट्री ऑपरेशन से इंडिया में मिलाया. उस ऑपरेशन का नाम अगर पता है तो लिखो यहाँ पे नीचे. जूनागढ़ को ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ा, प्लेबिसाइड से हुआ था. तो मैं जानना चाहूंगा जूनागढ़ में क्या हुआ, अगर किसी को पता है तो लिखो. और रिसेंटली आपको पता है
कि पाकिस्तान ने अपने मैप में जूनागढ़ को दोबारा अपना हिस्सा दिखाया है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड कार्टोग्राफिक एग्रेशन। तो ये जूनागढ़ का क्या इशू है, मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, इवन दो जूनागढ़ इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, right? It's not a big conflict, but there is a conflict. So since it is not covered in this video, I'll request you put it in a comment कि what is the issue between India and Pakistan about Junagadh, क्या हुआ था, right? Now let's take the Jammu and Kashmir वाला। Now Jammu and Kashmir का जो conflict है उसको समझना है तो महाराजा हरि सिंह को समझना पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह was the ruler of Jammu and Kashmir, including the Ladakh region. He was a Dogra Hindu king, but majority of his population was Muslim। और जब ये बात आई कि इंडिया और पाकिस्तान में विलय का, तो महाराजा was confused, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए। He is a Hindu definitely, but his प्रजा is majority Muslim, so उधर जाए तो भी गड़बड़, इधर आए तो भी गड़बड़। सो महाराजा थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए, और कहीं ना कहीं उनको मन में एक था कि मैं इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखता हूँ, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। अब उनका ट्रेड वगैरह सब पाकिस्तान से आसान है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और बट इंडिया, ही इज अ हिंदू एंड इंडिया विल लाइक क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर टू पार्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एंड टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो महाराज जी कंफ्यूजन में रहे, उनको समझाने की कोशिश की, दोनों साइड से उनके ऊपर प्रेशर था। तो महाराजा ने इनिशियली ना इधर गए ना उधर गए, और उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल का समय मांगा, जो कि पाकिस्तान ने साइन कर दिया। साइन तो कर दिया लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, इंडिया ने साइन ही नहीं किया। मतलब उन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन उसको ब्रीच भी कर दिया। ब्रीच क्या किया उन्होंने, 22 अक्टूबर 1947 को, अब रेगुलर आर्मी है, कबाली है, वो आपको सब कहानी पता है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर ये अटैक करवा दिया इनसे। और ये जब अटैक कराया, तो इसको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, तो महाराज जी के ऊपर प्रेशर आ गया। 22 को हुआ, महाराज जी ने फिर इंडिया में कॉल किया कि भैया ऐसे हो गया, आप सेना भेजो। तो इंडिया ने मना कर दिया, बोला हम सेना इसलिए नहीं भेज सकते बिकॉज यूर इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट हो, आपका हमारे पर विलय नहीं हुआ। तो महाराज जी हरि सिंह जी अंडर प्रेशर, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे 22 अक्टूबर को अटैक हुआ, 4 दिन के बाद साइन किया। अब इस 4 दिन में काफी नुकसान हो गया, इन द सेंस की कबायली लोग काफी अंदर आ गए, बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला में खूब लूटपाट, रेप, मर्डर हुआ, एंड लकीली वो लोग वहां से आगे नहीं आए क्योंकि लूटपाट में बिजी रह गए। एंड महाराजा ने 26 को साइन किया, और इमीडिएटली फिर इंडियन आर्म फोर्सेस का ट्रूप्स जो है वहां पे लैंड हो गया, और उसके बाद में पूरा वॉर में इंडियन आर्मी इन्वॉल्व हो गया, और कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया विद दिस सिग्नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि आज बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है बिकॉज आपको पता है ये जेनेसिस है, रूट है उसका। सो इंडिया इस तरह से मिल गया, और इंडिया ने फिर अपना मिलिट्री को वहां पे एयरफोर्स के थ्रू भेज दिया। अगर बारामूला में वो लोग लूटपाट में नहीं रुकते और आगे आ जाते, श्रीनगर पर पहुंच जाते, तो इफ श्रीनगर वुड हैव बीन कैप्चर्ड, फिर ये मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होता। यहां तक समझ में आ रहा है, राइट? सो यहां से शुरू हो जाता है इंडो पाक वॉर। तो अटैक तो हुआ 22 से, साइन हुआ 24 से, और लेकिन इंडियन 26 को, एंड वहां से फिर इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और उसके बाद उनको भगा भगो के खदेड़ दिया, और खदेड़ दिया मतलब खदेड़ रहे थे। एंड दैट्स द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जो कि इंडो पाक वॉर 1947-48 बोलते हैं ना। इसका अंत बड़ा ट्रैजिक हुआ कि जब ये सब चल ही रहा था, इंडियन आर्मी अपने उस रिकवर कर रहा था और उनको खदेड़ कर पीछे भगा रहा था, तो नेहरू जी चले गए यूएनओ, और उन्होंने यूएनओ को इन्वॉल्व कर दिया, और यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कि रेजोल्यूशन नंबर 47 बोलते हैं, ऑन 22 अप्रैल 1998। इस रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन 47 का जिक्र आज भी आता है। मतलब ये एक नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया। एंड इस रेजोल्यूशन के मुताबिक इंडिया के और पाकिस्तान के ट्रूप्स जहां पे भी उस टाइम थे, वहां पे वो उनको रोकने के लिए बोला, और वो जगह उनके, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो जगह जो है लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाने लगा। वो किस लिए हुआ? यूएन रेजोल्यूशन 47। एंड देन 1 जनवरी 1949 को फॉर्मल सीज फायर
नो वायलेंस, नो गोलीबारी, इस तरह से करके इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू। लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट आईबी। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो येलोइश पोर्शन है ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन 1947-48 एंड इसका फॉर्मल सीज फायर कब हुआ? 1 जनवरी को। नाउ so in this entire process India gained control of 2/3 of the state. So instrument of accession तो साइन हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पास ये हरा वाला पोर्शन चला गया और 2/3 बच गया इंडिया के पास, जिसमें कि कश्मीर वैली, जम्मू एंड लद्दाख बच गया, और पाकिस्तान ने 1/3 लेके चला गया, जिसको कि आज वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं, एंड गिलगित बल्तिस्तान ये भी चला गया हमारे हाथ से। अब सवाल ये है कि अगर ये यूएनओ में नहीं जाते और कम से कम 3 दिन और इंडिया को मिल जाता, तो शायद ये जो ग्रीन है वो येलो हो जाता, और शायद थोड़ा बहुत उनका ग्रीन को भी हम लपेट सकते थे। एनीवे वो ना भी करते तो ये जो 1/3 चला गया ये नहीं जाता, उस मोमेंटम में निकल जाता। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यूएन को इन्वॉल्व कर लिया नेहरू जी ने, तो it ended like this and it entered into a never ending process. ये भी रेजोल्यूशन में बोला गया था कि दोनों साइड को डीएस्केलेट करना, पाकिस्तान टू मूव देयर फोर्सेस फ्रॉम द एलओसी, एंड उसके बाद प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड तो तब होगा जब पाकिस्तान मूव करे, तो पाकिस्तान ना मूव करने को बोलता है, जब भी पंगे होते हैं तो वो यूएन रेजोल्यूशन 47 को बोलता है, लेकिन प्लेबिसाइड की बात करो तो और ट्रूप्स को डीएस्केलेट करने की बात करो वो मानता नहीं है। तो वो ना इधर का है ना उधर का, ना हेड है ना टेल है, बस पाकिस्तान ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बोलते रहते हैं। बट एनीवे दैट्स ओके, विल नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज़ हमारा एम इज टू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट। सो मैं जानना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। अगर नेहरू जी की जगह हमारे लोह पुरुष होते तो इस चीज को कैसे हैंडल करते, और आपको क्या लगता है यूएनओ को इन्वॉल्वमेंट करने के बाद इसका जिस भी तरीके से एंड हुआ एलओसी के फॉर्मेट में, वाज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वाज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? क्या ये यूएनओ को एक सक्सेस माने, फेलियर माने? और यूएनओ को याद रखना 45 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उसके बाद ये बना था, उससे पहले लीग ऑफ नेशन था जो फेल हो गया। तो जिस भी तरीके से यूएन ने इंटरवीन किया, डू यू थिंक इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान टू स्टेट्स, एंड हाउ इज इट impacted the regional politics, that is in this Asian region, and the global politics? आपको पता है it has got ramification all across। तो इसके ऊपर आप जरूर कमेंट लिखना, इसको और डेप्थ में करना। मैंने तो एक कहानी की तरह सुना दिया, आपको इसको थोड़ा सा डेप्थ में करना, ताकि आपको इंटरव्यू में अगर पूछ ले तो you should be able to convincingly say कि this is the and this is important, this war is important because ये roots है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का, right? So let's go to the next one। तो 62 में फिर एक वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर, है ना। हिंदी चीनी बाय बाय वो सब करते थे, कबूतर उड़ाते थे, सब कुछ था, पीछे से चाइना ने चिपका दिया एंड वी वर डिफीटेड इन 1962 ना। अनलाइक पाकिस्तान कभी अपने जनता को अपने हार को बताता नहीं, वो हर चीज में सक्सेसफुल है, हर चीज में सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया फॉर्चुनेटली हमने कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं सेट किया, वी एक्चुअली सेट की यस वी हैव लॉस्ट इन 1962 टू चाइना। तो लेट्स सी कि 1962 का जो वॉर हुआ था उसके मेन कॉजेस क्या थे, कॉजेस मतलब क्या कारण थे, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन, 1962 का वॉर क्यों हुआ। सो अक्साई चेन एंड नेफा, राइट, मुझे बताना नेफा का फुल फॉर्म क्या है। एंड उसके बाद में तिब्बतियन रिफ्यूजी, आपको 1950 में तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, और वहां से काफी रिफ्यूजी इंडिया में आए, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया दलाई लामा। तो इंडिया में जो दलाई लामा को शरण दिया उससे तिब्बत और चाइना बड़ा नाराज है। मुझे बताना दलाई लामा इंडिया में किस रीजन में रहते हैं, एक जगह है उसका नाम बताना, राइट, और आप में से कोई गया तो वो भी बताना। नेक्स्ट वर्स चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन डिस्प्यूटेड एरिया, जो आज करता था वो तब भी करता था, और इंडिया ने उस टाइम क्या किया, इंडिया के फॉरवर्ड पॉलिसी कर लिया, इंडिया ने भी जाके कुछ डिफेंसेस क्रिएट कर लिया क्या बोलते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, डिसएग्रीमेंट वाले एरिया में। तो चाइना को उसमें खुंदस आ गया और चाइना ने अचानक अटैक कर दिया, और इस अटैक में वी लॉस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, और अक्साई चीन का एरिया भी हमारे हाथ से चला गया।
तो एक बार वापस मैप में जाके देखना अक्सई चीन का एरिया कहाँ पे है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वो हमारे हाथ से चला गया। सो ये, और इस लॉस में नेहरू जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका पॉलिसी, उनका फॉरेन पॉलिसी, उनका डिफेंस के लेके जो एटीट्यूड था और कबूतर उड़ाना था, वो सब गड़बड़ हो गया। और उसी की जगह में अगर नेहरू जी की जगह इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैंडल करते, इन्होंने एक्चुअली वार्निंग भी किया था कि ये चाइना को भी कैनॉट ट्रस्ट, ये हिंदी चीनी बाय बाय बोलते हैं, इनके साथ ज्यादा हनीमून मनाना ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नेहरू जी फॉर सम रीजन वाज नॉट in agreement with him, and he had a lot of differences of opinion and the approach to foreign policy and military को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो इसमें क्या डिफरेंट तरीके से हैंडल किया होता। दूसरा, इसमें एक बुक है उनका, उस बुक का नाम है हिमालयन ब्लंडर। ये बुक है ब्रिगेडियर जेपी दलवी से, शायद आप लोगों ने सुना होगा। ये ब्रिगेडियर जेपी दलवी हैं, ये प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे चाइना ने, और ये 7 महीने उनके पास थे प्रिजनर ऑफ वॉर, और इनका ये बुक है हिमालयन ब्लंडर। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बुक है, मल्टीपल बार इसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। और इसमें इन्होंने, दलवी साहब ने एक एक्सट्रैक्ट है, लिखा है, मेनली इंडियन हिस्ट्री विल नेवर एक्सक्यूज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर, देन डिफेंस मिनिस्टर के मेनन, कृष्ण मेनन, एंड मिलिट्री जनरल मिस्टर क्या Prannath Thapar and Lieutenant General B.M. Call, who are responsible for losing the war and for the death of our potential and expert military soldiers and captains. The day when a soldier, after firing his last bullet at Chinese army and was hunted from all sides like a dog, Mr. Nehru was giving a speech at an international conference. Defense Minister V.K. Menon was in Europe to attend a function. Mr. Morarji Desai, Finance Minister, was wandering behind Prime Minister holding his files, and Mr. B.M. Kaul, senior military officer, was boating at Srinagar and enjoying with his family. Absolutely, they have declared holiday to India. वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि जब लोग कुत्तों की तरह मार रहे थे चाइना हिंदुस्तान की फौज को, तो ये लोग ये कर रहे थे। कोई विदेश यात्रा में, कोई पर्यटन कर रहा है, कोई फाइल उठा घूम रहा है। So that was you now can understand how explosive this book is. Brigadier Dalvi. So Himalayan Blunder, this is an extremely controversial memoir, मतलब उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखा हुआ, पेन बाय ब्रिगेडियर जॉन दलवी। He was PW, ऑलरेडी बता चुका हूँ। This book deals with the causes, consequences, and aftermath of the Sino-India War 1962, and that ended in China inflicting major defeat on India. तो आपको भी हर कॉन्फ्लिक्ट को उसको causes, consequences and aftermath. It is like TAT का what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome. Now, if you learn this, you will actually learn doing analysis of any situation, जिसके बारे में आगे के future videos में मैं बताऊंगा, या आप कमेंट करोगे तो I'll make it, right? Now, this book, The Himalayan Blunder, was hugely critical of Nehru's policy and was banned several times. But अभी ये अवेलेबल है, Amazon पे भी अवेलेबल है, अब अवेलेबल है। Anyway, मोदी गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। So this book is available. So if you're a military enthusiast, if you're a serious aspirant, I'll suggest you, if you can read it, अगर आपको टाइम हो तो बहुत अच्छा है ना। इसका ई वर्जन भी मिल सकता है, राइट। सो मुझे जरूर कमेंट लिखे बताना कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो इंडो चाइना वॉर का दिशा क्या होता, एंड आपकी नजर में व्हाट वर द एक्शंस दैट वेंट रॉन्ग फ्रॉम मिलिट्री लीडरशिप, द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडरशिप, जिसके कारण ये ब्लंडर हुआ। और इसके बाद इंडिया के मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, हाउ डिड दिस वॉर और दिस डिफीट अफेक्टेड नेहरू जी। एंड इसके इमीडिएटली बाद एक और वॉर हो गया 1962 में चाइना, 1965 वॉर, क्योंकि इंडिया वीक हो चुका था, पाकिस्तान को ऑलरेडी हमसे पंगे होते 47-48 में तो नहीं मिला, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के सेकेंड वॉर ऑफ कश्मीर लॉन्च किया, राइट। सो दिस वाज इंडो पाक वॉर 1965, 3 साल के बाद। तो मुझे एक और चीज बताना, इस 1960 वॉर में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर,
तो नेहरू जी थे। क्या नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे या कोई बदल गया? नेहरू जी को क्या हुआ ना, जरा सोचना। नेहरू जी को सदमा तो बहुत लगा 1962 के चाइना वॉर के बाद, राइट? सो लेट्स सी द कॉजेस ऑफ इंडो चाइना वॉर 1965। वन इज अनरिजॉल्व कश्मीर इशू 1947 से तो चल ही रहा, जिसको यूएन सीजफायर हो गया था। देन पाकिस्तान मिलिट्री बिल्ट अप है ना, पाकिस्तान को बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन एंड यूएस का असिस्टेंस मिलता है। और आपको पता है डॉक्टर जयशंकर बीच में कमेंट मारते हैं कि द वेस्ट वाज मोर इंक्लाइंड टू अ मिलिट्री डिक्टेटर देन अ डेमोक्रेसी। वो इस इवेंट का बात करा। तो पहले यूएस ही पाकिस्तान को फंड करता था अगेंस्ट इंडिया, इंक्लूडिंग उनके टेररिस्ट ऑपरेशन में। आज बड़े हमसे दोस्त बने हुए। सो यूएस का दुश्मनी दोस्ती दोनों खराब है एक्चुअली, है ना, मतलब ही है। सो यूएस का असिस्टेंट से पाकिस्तान का मिलिट्री मॉडर्नाइज हो रहा था। दूसरा, पाकिस्तान को पता कि इंडिया का इकोनॉमिक हालत एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप हिला हुआ है चाइना के डिफीट के बाद में, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी था। प्लस चाइना ने भी इनको भड़काया कि अभी तुम मौका है, जो तुम्हें चाहिए अभी कर लो, बिकॉज अभी हिले हुए हैं, वी विल गाइड यू क्या करना है। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट इज बॉर्डर में बड़े स्कर्मिशेस होते थे, एलओसी में भी होता था, आईबी में भी होता था, जिससे है ना गोलाबारी एंड ऑल दैट। आईबी पे भी होता है, एलओसी भी होता था। रन ऑफ कच्छ, आपको पता है रन ऑफ कच्छ एरिया जहाँ पे वो सर क्रीक वाला एरिया एंड ऑल दैट, वहां पे इन्होंने कुछ प्रिएम्प्टिव उंगल मार के देखा पाकिस्तान ने। एंड उसके बाद इंसर्जेंसी भी कश्मीर में प्रमोट करना शुरू कर दिया 65 के जुलाई 65 के में। एंड इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर में। तो इसके ऊपर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगर आपको पता है, स्पेशली अगर आप जम्मू रीजन वगैरह से हो, तो आपको ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो लड़के जम्मू कश्मीर वगैरह से, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन बी आस्क्ड ऑन दीस थिंग्स बिकॉज यू लिव इन दैट। हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं स्टेट को, आप तो स्टेट के हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर। इस वॉर का आउटकम क्या था? अगेन यूएन ने सीज फायर कर दिया था। एंड सितंबर 65 को ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था। मुझे बताना ताशकंद एग्रीमेंट किसके और किसके बीच में साइन हुआ था? और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का डेड बॉडी आया था वहां, क्या हुआ? और उसके ऊपर एक मूवी भी है, उस मूवी का नाम क्या बताना? वो अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उनका डेथ हो जाता है मिस्टीरियस कंडीशन में। उनका बॉडी को वहीं से चंदन लगा के लाया था कि उनका ड्राइवर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। उनका एक वीडियो रिसेंटली पिछले हफ्ते देखा था, उनका बॉडी एकदम नीला पड़ चुका था। उस ड्राइवर के ऊपर भी बड़े मर्डर के अटेम्प्ट हुए थे कि मुंह बंद करो वरना उड़ा देंगे। तो समथिंग वाज फिशी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डेथ के बाद फॉरेन लैंड में डेथ हुआ और उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। दिस इज द काइंड ऑफ व्हाटएवर। मुझे बताना कौन है वो। सो जो भी इंडिया ने काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एंट्री मारा था, लेकिन वो सब यूएन के बाद रिटर्न किया और कोई भी बाउंड्री में बदलाव नहीं हुआ इस युद्ध के बाद। और टेंशन डेफिनेटली बढ़ गया एंड इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया बिकॉज सेकेंड वॉर था पाकिस्तान और इंडिया का, यूएसएसआर का हमारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ गया था इसमें। तो मुझे कमेंट लिख के बताना कि 65 वॉर के बारे में व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव एंड हाउ हैज दिस शेप्ड इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड इंडिया में फंडामेंटली मिलिट्री लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स और चेंजेस हुए। ओके, 65 के बाद फिर अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडो पाक वॉर होता है जो कि 1971 का है और इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, है ना। और मुझे बताना ये कितने दिन का था और कब से कब तक था? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री सक्सेस फॉर इंडिया बिकॉज इसके अंदर जो नंबर ऑफ पीओडब्ल्यू हुए थे वो शायद वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट नंबर ऑफ सरेंडर था। तो मुझे बताना कितना था, कब से कब तक था, कितने दिन का था एंड हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग दिस वॉर एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और उस टाइम में हु वाज द प्राइम पाकिस्तान का पॉलिटिकल बॉस कौन था और मिलिट्री लीडर कौन था, जरा मुझे बताना। और अगर आपको इसका कॉजेस पता है तो वो भी लिख के बताना। और अभी आपको पता पाकिस्तान की शेख हसीना कुछ दिन पहले इंडिया में आई थी, अभी तो वो यहां से निकल गई। इनका भी नॉट इस ऑपरेशन से बट इनके फैमिली वाज इन्वॉल्व। तो उनका नाम क्या था, मतलब समझे लिंक रूट्स।
तो विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ, आई वांटेड टू पुट इट इन द कमेंट, सो लेट्स मूव फर्दर। सो इंडो पाक वॉर 1971 बांग्लादेश का लिबरेशन का वॉर है। इसके कॉसेस जल्दी जल्दी देख लेते हैं मोटा मोटा। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कटना चाहता था। इंडिया के लिए भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होने ट्रबल था, बिकॉज एक साइड वेस्ट पाकिस्तान, एक साइड ईस्ट पाकिस्तान, ऊपर चाइना, तो एक 3 फ्रंट प्रेशर था इंडिया के ऊपर। तो इंडिया भी चाहता था कि एक साइड निपट जाए, और उसके लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है वो खुद ही जो है बांग्लादेश वाले, जो बांग्लादेश मतलब जो सब्सिक्वेंट बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान, वो वेस्ट पाकिस्तान से कटना चाहता था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बिकॉज ऑफ उनको ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ उनको एक सब स्टैंडर्ड समझते थे, लैंग्वेज, लॉट ऑफ इश्यूज होते, ब्लैक। तो मुक्ति वाहिनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जिसका गठन हुआ, जिसका कि बाद में इंडिया ने भी सपोर्ट दिया, बोथ पॉलिटिकल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट एंड फाइनेंशियल एड, सब कुछ दिया। एंड पाकिस्तान में एक मिलिट्री क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान की आर्मी को यूज करके एक मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू किया अगेंस्ट मुक्ति वाहिनी एंड अगेंस्ट दिस लिबरेशन वॉर इन दी ईस्ट पाकिस्तान साइड में। तो मुझे बताना मुक्ति वाहिनी का बॉस कौन था, ये भी एक बताना आप मुझे, है ना। 1970 में एक पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में, एंड सरप्राइजिंगली द वेस्ट, जो कि पाकिस्तान में पावर सेंटर है, वो हार गए, और ईस्ट में somebody won। मैं जानना चाहता हूं कौन जीते, और जीतने के बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, या उनके साथ क्या हो, जरा कमेंट लिख के बताना। बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूं, इससे आपको सोचने में ट्रिगर करेगा। एनीवे आपसे ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछेंगे, आफ्टर ऑल आप मिलिट्री लीडर बनने जा रहे हो, तो मिलिट्री हिस्ट्री तो पता ही होना चाहिए। तो मुझे जरूर बताना कौन थे ये बंदा जिनको जो इलेक्शन जीते, और उनका क्या हुआ जीतने के बाद, क्या वो बने। सो मार्च 71 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान में, नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। तो अगेन कमेंट लिख के बताना इस ऑपरेशन सर्च लाइट का क्या उद्देश्य था और इन्होंने क्या किया वहां पे। यू नो, शेख हसीना के आने से पहले शेख हसीना ने या उनका डिफेंस में उनका किसी होम मिनिस्टर ने कमेंट मार दिया था, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रजाकार बोल दिया। तो ये रजाकार क्या है, रजाकार ने क्या किया? ये रजाकार वर्ड हैदराबाद में भी, ऑपरेशन पोलो में भी रजाकार का जिक्र आता है, और यू नो बीच बीच में इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये वर्ड कभी कभी आ जाता है, रजाकार। क्या है रजाकार? एक मूवी भी है रजाकार। सो कमेंट लिख के बताना। नेक्स्ट इज 71 में इंडिया बिगेन ओपनली सपोर्टिंग मुक्ति वाहिनी। व्हाट इज मुक्ति वाहिनी? इट इज द लिबरेशन वॉर के लिए जो एक आर्म्ड ग्रुप था, जिनको कि इंडिया ने भी फिर बाद में सपोर्ट किया। उसके बाद 3 दिसंबर 71 को पाकिस्तान ने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक मार दिया। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे इन्वॉल्व है। तो मुझे बताना उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे। और वहां पे एक घटना हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बोला कि तुम इस टाइम पे अटैक करो, तो उन्होंने बोला अभी नहीं, इस टाइम। तो मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है और उनको लेटर उनको किस रैंक में प्रमोट किया, जरा मुझे कमेंट लिख के बताना। फिर 4 दिसंबर 1971, मतलब वो जो प्रिएम्प्टिव एयर स्ट्राइक हुआ उसके अगले दिन इंडिया ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेडियो पे आके अनाउंस कर दिया। एंड देन 14 दिसंबर 1971 को, मतलब 4 को किया, 10 दिन के अंदर इंडियन फोर्सेस ने ढाका को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद में इसके अंदर ये तो ईस्ट में हो रहा था, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट को भी ओपन कर दिया ताकि पाकिस्तान की आर्मी वहीं रहे, वो रीइंफोर्स ना करे इधर ईस्टर्न पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की फौज को उधर कर दिया, इधर वालों को इधर कर दिया। तो उधर के लिए बैटल ऑफ लोंगेवाला। तो मुझे बताना बैटल ऑफ लोंगेवाला एक बड़ा फेमस बैटल है जिसके ऊपर एक मूवी भी बना है। कौन सी मूवी है और क्यों ये फेमस है और ये कहां पे लोंगेवाला, मैप में चेक करके मुझे बताना। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बसंतर। ये भी एक बड़ा टैंक बैटल थे दोनों। एंड उसके बाद में दिसंबर 16, 1971 में पाकिस्तान की फौज ने ईस्टर्न कमांड ने सरेंडर कर दिया। तो मुझे बताना कितने लोगों ने सरेंडर किया और उन सरेंडर पीओडब्ल्यूज का क्या हुआ। उसके बाद ये भी बताना इस पूरे ऑपरेशन में कुछ 54 इंडियन पीडब्ल्यूज भी थे, उनका क्या हुआ। हमने उनके पीडब्ल्यू के साथ क्या किया, उन्होंने हमारे पीडब्ल्यू के साथ क्या किया। उसके ऊपर एक मूवी भी है। कौन सा मूवी है मुझे बताना, रिसेंट मूवी है शायद। नेक्स्ट, यहां से एक स्टेट नया क्रिएट हुआ, उसका नाम है बांग्लादेश।
तो मुझे बताना इस नए स्टेट का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना। ठीक है, उसके बाद सो दैट वाज ए बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री पाकिस्तान के लिए। और इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो वहां पे वेस्टर्न फ्रंट पे जो भी हुआ था वो सब एलओसी विलोसी हो गया, एग्रीमेंट हो गया ना, श्रीनगर में जो भी हुआ वो सबको शिमला एग्रीमेंट से, उसको आपने सुना होगा। तो एक बार शिमला एग्रीमेंट क्या है वो भी देख लेना, क्योंकि एक बार ये पता चल जाएगा तो आपको चीजों को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। उसके बाद इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया एज अ मिलिट्री पावर, बिकॉज 62 में हारे थे, बाकी चाइना पाकिस्तान के साथ था, चाइना के साथ हार गए थे, बट यहाँ पे 93, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बताना कितने पीडब्ल्यू है। एंड जिस तरह से कि एक स्टेट को दो में काट दिया, तो इंडिया का एक मिलिट्री पावर, मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है साउथ एशियन रीजन में काफी बढ़ गया। एंड पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है और मिलिट्री रेपुटेशन बुरी तरह से सफर हुआ। और एक फोटोग्राफ है जो पाकिस्तान को मिर्ची लगाता है, वो है ये फोटोग्राफ। आई एम श्योर आपने भी ये फोटोग्राफ देखा होगा। तो मुझे बताना इस फोटोग्राफ में ये जो दो लोग बैठे हुए हैं, एक सरदार जी और एक इनके बगल में, ये दोनों कौन है? जो पाकिस्तान का ऑफिसर बैठा हुआ है इनका नाम क्या है? इनका एक कनेक्शन इमरान खान से भी है, इमरान खान नियाजी। एक बार यूएन में हमारे एक सिविल सर्वेंट ने उनका नाम पूरा बोला था, इमरान खान नियाजी। इमरान खान को नियाजी आगे लगाना पसंद नहीं है क्योंकि उनका कनेक्शन इनसे है, तो जरा चेक करना, बताना क्या है। और इस फोटो में बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं, सब तो छोड़ो, बट ये फोटो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के हर ऑफिस में दिखेगा, और ये बहुत मिर्ची लगाता है, बिकॉज दिस इज द सरेंडर सेरेमनी, जहाँ पे पाकिस्तान का जनरल साहब साइन कर रहे हैं कि हम अनकंडीशनली अपनी फौज को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हैं। तो मुझे बताना सरदार जी कौन है, राइट? सो दिस वाज 71। डू कमेंट, मुझे बताना कि 71 का वॉर का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के फ्यूचर के जर्नी में, किस तरह से इसने कंट्रीब्यूट किया। यहां से इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है डेफिनेटली, बट देन आज ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ गया, बिकॉज शेख हसीना चली गई, नया जो बंदा आया वो अलग चल रहा है। तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप बाय एंड लार्ज ठीक ठाक ही थे जब तक शेख हसीना की पार्टी है, बट दूसरी पार्टी जो आती है या जो अभी है, तो मुझे बताना अभी क्या इश्यूज है बांग्लादेश के साथ, एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। शेख हसीना को सपोर्ट करने में इंडिया को क्या चैलेंजेस थे? अगर शेख हसीना को यहीं पे असलम देना पड़ता तो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप किस दिशा में जाता? जरा इन सब के ऊपर कमेंट बताना। इंसिडेंटली शेख हसीना 71 वॉर के बाद इंडिया में एक बार और शरण ले चुके हैं, उनके परिवार के 17 लोगों को एक साथ मार दिया था। वो इंसिडेंट आपको पता होगा, नहीं पता तो उसको अपडेट कर लेना, जरूरत पड़े तो मुझे बताना, विल पिक इट अप हियर, राइट? उसके बाद आया था 1999 कारगिल वॉर ना। ये सब मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बीन बॉर्न देन, इससे पहले वाले 71 सब में तो आप लोग पैदा भी नहीं होंगे। तो 91 कारगिल वॉर, मुझे कमेंट लिख के बताना कि कारगिल वॉर का ऑपरेशन मेघदूत करके एक ऑपरेशन हुआ था, उससे क्या कनेक्शन है, और कारगिल वॉर में हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उस साइड में कौन था। और जब पाकिस्तान आर्मी का वो चीफ, जो कि बाद में डिक्टेटर था, उन्होंने जब उनका प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ संयुक्त एक्सप्रेस और वो समझौता एक्सप्रेस सब कर रहे थे, पीछे से उस आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के कारगिल वॉर कर दिया। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बताया, ना एयर चीफ को बताया, ना नेवल चीफ को बताया, चोरी छुपे पीछे से कर दिया। तो मुझे बताना वो कौन है, वो हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान उस टाइम में, हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिया में, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, और ये घटना के पीछे ऑपरेशन मेघदूत का क्या कनेक्शन है, ये मुझे कमेंट लिख के बताना। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस। मैं इसको नहीं बता रहा बिकॉज आई वांट टू ट्रिगर थिंकिंग इन यू। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट लिखो, तो आई विल मेक इट इन द सब्सिक्वेंट सीरीज ऑफ वीडियो। सो कारगिल वॉर 99 का वॉर है, हमें पता है, और उसके अंदर काफी सारे, इसमें एक्चुअली इंडिया का
सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का फेलियर भी है। इसके ऊपर आजकल बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। कारगिल रिव्यू कमेटी में उनके बारे में कुछ निकला नहीं, ब्लेम फिक्स नहीं किया, बस उन्होंने ये बोल दिया कि सीडीएस बनाओ, ये करो वो करो। बट कारगिल में यंग ऑफिसर, मिलिट्री लीडरशिप में यंग लॉट ने बहुत जबरदस्त काम किया, बट उनको इतनी मौत करना का सामना पड़ा बिकॉज सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का सॉलिड फेलियर है इसमें, इंटेलिजेंस फेलियर मिलिट्री लीडरशिप का। बाकी सिविलियन लीडरशिप तो बाकी वो सब छोड़ दो, वो तो ठीक है, बट मिलिट्री लीडरशिप का देवर इंडिकेशंस की गड़बड़ हो रहा है, लेकिन पीपल चोज टू कीप क्वाइट एंड हशश करने की कोशिश किया, सोचा मारपीट के दबा देंगे, लोग मरते गए। लेकिन सीनियर लीडरशिप, जो बड़े बड़े भारी भारी लीडरशिप नहीं होते, उनका इसमें एक मेजर फेलियर है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपको पता है या ऐसा कोई नाम पता है, यू कैन पुट इट डाउन। जनरल यशमोल सर के वीडियोस में देखना, देयर आर लॉट ऑफ अदर वीडियोस जहां पे खुल के कारगिल के बारे में जिन लोगों ने इनिशियली इन घटनाओं को उजागर किया, उनका कोर्ट मार्शल हो गया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सीनियर लीडरशिप का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, बट जूनियर लीडरशिप एंड जवानों ने, जैसे जवानों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है इसमें, एंड यू मस्ट नो दिस बिकॉज ये आपके लाइफ स्पैन में हुआ है। सो इसके कॉजेस बोले तो इन्फिल्ट्रेशन, ये जो जो विंटर्स में, पीक विंटर्स में जो पोस्टों को हम वेकेट कर देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग था ना आ पाओगे ना मांगे। पाकिस्तान के क्या बोलते हैं रेगुलर मिलिट्री नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाले, इन्होंने एलओसी पे आके उस पोस्ट के ऊपर अपना कब्जा जमा दिया। मुझे बताना कितने एक्सटेंट पे कवर किया था उन्होंने, तो कितना डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया था, ये मुझे बताना। आई एम श्योर अगर आपने अगर इसको थोड़ा बहुत एसएसबी के लिए अपडेट करो तो ये सब कर लिया होगा, है ना। दे ऑक्यूपाइड स्ट्रैटेजिक हाइट्स, ऐसे हाइट्स जिसमें कि इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर सकते थे, ऊपर से एक रोड को भी डोमिनेट कर रहे थे, वो है NH1 अल्फा। तो मुझे बताना ये NH1 अल्फा को डोमिनेट करने से इंडिया को क्या प्रॉब्लम था। अगर ये कारगिल पाकिस्तान से हम नहीं ले पाते तो इससे हमारे स्ट्रैटेजिक डिफेंस व्हाट एवर पोस्चर में क्या फर्क आता, और इसको लेने के बाद ऐसा एक सिचुएशन दोबारा ना आ जाए तो व्हाट अल्टरनेटिव प्लान्स द गवर्नमेंट हैज मेड, मुझे बताना इसका कनेक्शन, है ना। मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं तो अभी एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं। आई वांट यू टू थिंक एंड पुट योर कमेंट्स। नहीं पता तो चेक करो और उसको फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखो। आई वांट दिस video to be more interactive so that you exactly figure thinking and understanding things in correct perspective, and go to SSB with a solid understanding of the military history that our Army, Navy, Air Force was involved। और आपसे पता चले जब आपका इंटरव्यू ले कि एक बंदा आया, एक बंदी आई है who has understanding, sound understanding of the मिलिट्री हिस्ट्री, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता वो रियली पैशनेट है, बजाय कि सिर्फ TAT के बी पॉजिटिव करते रह जाओ, है ना। सो कमेंट लिख के बताना। सो इसका आउटकम था कि इंडिया डेफिनेटली इट वाज ए विक्ट्री तो हुआ, लेकिन इंडिया पेड अ ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सीनियर मिलिट्री लीडरशिप जो है फेलियर हुआ था। उनकी गलती के कारण विक्ट्री तो बोल रहे हो, लेकिन विक्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी हुआ। पाकिस्तान ने करीब 4000 लोगों को गवा दिया, तो पाकिस्तान का भी तो नुकसान हुआ है ना। इसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को दौड़ते दौड़ते US जाना पड़ गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं कि उनकी फौज क्या कर रही है। उनको तो मुजाहिदीन भेजे बोले, बाद में जब पिटाई शुरू हुई तब चीफ साहब गए, बोले भैया हमारी पिटाई हो रही, बचाओ, US से बात करो। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता भैया US को क्या बात करे, तुमने तो बोला था, मुजाहिदीन बुलाने से झूठ बोला था, हम ही थे। कौन था बताना? वो जनरल साहब। बाद में वो जनरल साहब ने पाकिस्तान को टेक ओवर भी कर लिया था। उसके कारण पाकिस्तान का मिलिट्री और पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत रंजिश हो गई थी, क्योंकि बड़ा सोच के देखो, इंडियन आर्मी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का चीफ इंडिपेंडेंटली कुछ कर जाए, अपने प्राइम मिनिस्टर को अलग रखे। दैट्स एरोगेंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेसी, ये कोई सीक्रेसी है तो बदतमीजी है। एनीवे, तो उनका है। तो इसके बाद में जो हमारा रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब था वो बुरी तरह खराब हो गया, एंड लॉट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। और एक चीज जो इसका आउटकम है, थोड़ा अच्छा ही बोल सकते हैं, वो ये है कि CDS को, जो बहुत समय से लटक रहा था, CDS का गठन हो गया कारगिल रिव्यू कमेटी के आधार पर। अदरवाइज वो, ये नहीं कि अभी बहुत एफिशिएंट हो गया है, लेकिन हो तो गया।
वी हैड टू सीडीएस, एक इससे पहले थे और दूसरे अभी के हैं। तो मुझे बताना पहले वाले कौन थे और उनका डेथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हुआ, क्या हुआ, और अभी के सीडीएस कौन है, रोल ऑफ सीडीएस, ये सब पूछते हैं। तो मुझे यहाँ पे कमेंट लिखे बताना। सो दैट वाज कारगिल वॉर। तो मुझे बताना कारगिल वॉर के ऊपर आप और क्या इंफॉर्मेशन जानते हो और क्या आप इसको एक सही तरीके से, अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ कारगिल वॉर एंड हाउ डिड दिस इट शेप इंडियन आर्म फोर्सेस का फ्यूचर कोर्स, तो यू शुड बी एबल टू टेल। और इसको सीडीएस को जब एक्सप्लेन करते हो उस टाइम भी इसका रिक्वायरमेंट आएगा। तो आई होप यू विल डू इट। कमेंट लिख के मुझे बताना, अगर चाहिए तो आई मेक ए एलाबोरेट वीडियो ऑन दिस, राइट। तो ये तो हो गया, हमने वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने क्या क्या देखा, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, 62 का चाइना इंडिया वॉर, उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 71, कारगिल वॉर 99। इसको अच्छे से कर लेना। ये जो मैंने किया इससे आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए कि व्हाट्सएप में कमेंट लिख के बताना। इतने से जो बताया, आई हैव नॉट कवर्ड इट फुली, बट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। अगर फायदा हो रहा है, कंटिन्यू दिस सीरीज, अदरवाइज आई विल गो इनटू सम अदर सीरीज, राइट। नाउ क्विकली सी द मेजर ऑपरेशंस that India was involved in post independence. Now it's not about Indian Army alone, it is Army, Navy, Air Force, but Army को लेके बोल रहा हूँ because after all the largest component is the armed forces का Army component, and operation में involvement भी उनका relatively ज्यादा है। So now we are seeing operations। अभी हमने क्या खत्म किया, wars and conflict। तो इसमें पहला आता है ऑपरेशन पोलो। ना आपको याद होगा जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चैलेंज था, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन। उसमें 3 प्रिंसली स्टेट ने पंगा किया था, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था जूनागढ़। तो पहला तो जम्मू एंड कश्मीर को हमने बताया कि फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, सेकेंड वॉर, वो सब हो गया। नाउ ये जो ऑपरेशन पोलो है, ये ऑपरेशन पोलो है हैदराबाद का इंटीग्रेशन इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद में एक निजाम साहब थे, हैदराबाद में एक मुस्लिम रूलर थे जिनकी फोटो यहां आप देख सकते हो। तो मैं जानना चाहूंगा इनका नाम क्या था, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से मना कर दिया। इनको बीच में 2 आइडिया है, या तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। नाउ आप जरा मैप पे देखना कि हैदराबाद को देखोगे तो हैदराबाद से लैंडलॉक कंट्री, इसका सी कोस्ट से टच नहीं होता, सी के साथ हैदराबाद टच नहीं होता। तो इंडिया के बीच में एक हिस्सा हैदराबाद, और हैदराबाद के राजा साहब, निजाम साहब बोलते हैं हम तो पाकिस्तान में विलय करेंगे। सोच के देखो क्या हालत हो जाती इंडिया का अगर ये निजाम साहब की इच्छा पूरी हो जाती। जाएंगे कैसे, उड़ के जाएंगे इंडिया के स्पेस से। तो एक साइड में वेस्ट पाकिस्तान, एक साइड में ईस्ट पाकिस्तान, ऊपर चाइना, और इंडिया के बीच में, यानी कि आपके घर के अंदर पाकिस्तान का एक कमरा। कैसा लगेगा? तो निजाम साहब को समझाने की कोशिश की, भैया मत करो मत करो मत करो। निजाम साहब नहीं माने, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, समय चाहिए, ठीक है, नहीं माने। अब नेहरू जी को लोह पुरुष जी बोलते रहे सर सेना भेजो, वो सेना ने भेजे, उनको सेना भेजने में प्रॉब्लम। तो उन्होंने नेहरू जी को बोला आप चलो विदेश यात्रा, और हमारे लोह पुरुष ने पीछे से फौज भेज दी, और दे वर कॉट ऑफ गार्ड। उन्हें पता नहीं चला, इंडियन आर्मी पहुंच गई, और उन्होंने 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 3-4 दिन के अंदर पूरा गेम निपटा दिया। इधर भी रजाकार्स का वर्ड आता, खूब मास मर्डर, माइनॉरिटी का किलिंग, ये वो सब हुआ। आज एक मुस्लिम लीडर है जिनके भाई ने एक बार बोला था हम रजाकार के वंशज है, कौन है वो बताना। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो मुझे बताना रजाकार ने क्या किया था, राजा साहब ने क्या किया। फिर हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो से। तो ये ऑपरेशन पोलो के कुछ फोटोग्राफ्स है, इसको नेट पे मिल जाएगा, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। सो कमेंट लिख के बताना कि अगर ऑपरेशन पोलो नहीं होता और हैदराबाद इंडिया का हिस्सा नहीं होता, बीच में एक हिस्सा होता, तो आज इंडिया का जियोपॉलिटिक्स कैसा होता। एंड
हमारे लोह पुरुष जी को आप जानते हो, इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बना? उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। नेहरू जी तो कबूतर उड़ाते रहे। इसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन विजय 61 में, गोवा का लिबरेशन। गोवा एक पोर्चुगीज का कॉलोनी था। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ब्रिटिश रूल तो 200 साल था, पोर्चुगीज ने कब से कब तक किया था, किन एरिया के पास था, और ये लोग कैसे घुस गए? और पोर्चुगीज के अलावा इंडिया का एक पोर्शन फ्रेंच कॉलोनी भी था, कौन सा था और वो कब गए? गोवा में कब से थे? गोवा दमन दीव था, तो ये एक पोर्चुगीज कॉलोनी था। ये लोग क्या करते थे वहां पे? ये लोग क्यों नहीं गए? समझाया था, जाओ जाओ जाओ, नहीं माने। वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला नेहरू जी को, फौज भेजो। नेहरू जी नहीं, कबूतर उड़ाएंगे। नेहरू जी को विदेश यात्रा भेजा, पीछे से फौज भेज दी, निपटा दिया। 17 दिसंबर से 19 जनवरी 3 दिन में गोवा लिबरेट हो गया। पोर्चुगीज ने बोला भाई ये पकड़ो आपकी गोवा, हम चले। तो मुझे बताना इसके बारे में आपको कितना पता है ना। सो दिस इज गोवा बैक विद द मदरलैंड। हु इज द मदरलैंड? भारत। सो गोवा की कहानी है। इंडियन फ्लैग ओवर पंजिम, पंजिम इज द कैपिटल ऑफ गोवा, है ना। प्रोक्लेम्स लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल टेरर। तो मुझे बताना कौन थे। उसके बाद लिबरेट होने के बाद हु बिकेम द गवर्नर ऑफ दैट प्लेस? किसने इस गोवा का लिबरेट होके अनाउंस किया कि इट इज पार्ट ऑफ इंडिया? थोड़ा हिस्ट्री देखना गोवा का, राइट। सो दिस इज ऑल गोवा का लिबरेशन। सो ऑपरेशन विजय, है ना। कारगिल के ऑपरेशन को भी ऑपरेशन विजय बोलते हैं। ये बताना कारगिल में जो एयरफोर्स का ऑपरेशन को उसको क्या बोलते हैं, मुझे बताना, राइट। उसके बाद एक और ऑपरेशन में इन्वॉल्व था इंडिया, वो है ऑपरेशन पवन, है ना। ये श्रीलंका में हुआ था और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन था श्रीलंका में जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो मुझे बताना कि LTTE का चीफ कौन था, LTTE का गठन क्यों हुआ, ये तमिल लिबरेशन क्या है, ये तमिलियन कौन है, इनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। पहले इंडिया ने ही LTTE को ट्रेन किया, इसका मतलब इंडिया का कुछ इंटरेस्ट था, और फिर इंडिया ने ही अपनी फौज को भेजी, और इंडिया की फौज को इन्होंने फर्स्ट जो बटालियन थी हवा से ड्रॉप किया था, हवा में उड़ा दिया। सोचा था इनको बहुत आराम से काबू कर देंगे, बट दे वर सो पावरफुली मिलिट्री इक्विपमेंट। तो वो LTTE का लीडर कौन था बताना। इंडिया का इस ऑपरेशन में क्या हुआ वो बताना। वॉज इट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, वॉज इट नॉट सक्सेसफुल ऑपरेशन, क्या लेसन्स लर्नड है, जरूर बताना। जो लोग स्पेशली साउथ से है, प्लीज इसको जरा अच्छे से करना, है ना। और अभी क्योंकि इंडिया का श्रीलंका में अभी हमनटोटा पोर्ट, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, तो इंडिया श्रीलंका का रिलेशनशिप कैसा था, ऑपरेशन पवन के बाद क्या हुआ, इसमें हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन भी हो गया था। इस ऑपरेशन के बाद एक प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन भी हो गया था। तो कौन थे वो प्राइम मिनिस्टर, सब जरा कमेंट लिख के बताना। ये ऑपरेशन पवन की फोटोग्राफ है। इसमें ये जो मेजर साहब का फोटो दिख रहा है, इन मेजर साहब को परमवीर चक्र मिला था, 1 परमवीर चक्र फ्रॉम ऑपरेशन पवन। तो मुझे बताना इनका नाम क्या है, और थोड़ा देख लो इनको क्यों मिला। तो मुझे ये भी बताना अब तक जितने भी वॉर थे, उन वॉर में किसको परमवीर चक्र मिला। जो 1947-48 के वॉर में फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था एक मेजर साहब को, उनका नाम बताना। कारगिल वॉर में कुछ लोगों को मिला है, ऑपरेशन मेघदूत में मिला है, तो मुझे बताना उनके नाम, ताकि मुझे आपको पता चल जाए कि किस किस ऑपरेशन में कितने कितने मिले। ये जो मैं ऑपरेशन बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इनका सीक्वेंस, है ना। अभी 87 दिखा है, अभी आगे 84 वाला एक और आएगा ब्लू स्टार, तो उसको आप रीअरेंज कर लेना। मतलब इसमें क्रम टूट गया मेरा स्लाइड का, बट दैट्स ओके। तो मुझे बताना ये जो ऑफिसर है इनका नाम क्या है जिनको परमवीर चक्र मिला ऑपरेशन पवन में। सो कमेंट लिख के बताना कि इसको क्या हुआ, और क्या इंडियन आर्मी LTTE को एलिमिनेट कर पाया। अगर नहीं किया तो LTTE का अंत कैसे हुआ, है ना। LTTE का अंत कैसे हुआ इसको जरा चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखना, राइट। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत, नो ये सीक्वेंस टूट गया, ये 84 का है, वो पुराना था। वो ऑपरेशन मेघदूत 87 का है ना, ये
बाद में आना चाहिए था, क्रम टूट गया, आप ठीक कर लेना। तो मुझे बताना ऑपरेशन मेघदूत का अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ऑपरेशन मेघदूत के बाद हमने जिस भी एरिया को कैप्चर किया उस एरिया को हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते बोलता कौन सा एरिया बताना। उसको मेंटेन करने के लिए हिंदुस्तान की फौज जो है हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए लगता है। तो उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये हर इंटरव्यू ऑफिसर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताना ऑपरेशन मेघदूत किस लिए किया, इसको करने की क्या जरूरत पड़ी, इस ग्लेशियर को होल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंस है, इससे इंडिया को क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है, इसके एक साइड में कौन है, दूसरे साइड में कौन है। एक पॉइंट है इस पूरे जो क्या बोलते हैं मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत का एक पॉइंट है एनजे समथिंग, एनजे कुछ, वो मुझे बताना वो एनजे कौन सा पॉइंट है। इसमें एक इंदिरा कॉल करके पॉइंट है, वो क्या है, एक शासकम वैली करके वो क्या है, इसके अंदर ग्लेशियर क्या है, उस ग्लेशियर से एक नदी बहती है उसका नाम क्या है। पाकिस्तान बोलता हम भी उस जगह पे है, जगह का नाम नहीं बता रहा, आप बताना। इंडिया भी है, इंडिया वहां पे होल्ड कर रहा है, इसमें एक लिविंग पीवीसी भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड, इसके बारे में आप इन डेप्थ करना, आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे ना, करके आना यार, एटलीस्ट एयरफोर्स के ट्रेनिंग में आओगे, ये सब करो, ये सब करोगे तो मुझे एसएमएल के क्लासेस लेने का इंडिपेंडेंस आएगा। अभी क्या है, ये भी कवर करना, वो भी आप भी प्रेशर में, मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है। मैं नो कि मेरे यहाँ पे कोई भी चीज आपको अंदाजा लग गया होगा, कोई भी चीज टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। इन वीडियोस को देख लो, मेरे साइकोलॉजिकल टेस्ट की वीडियोस को देख लो, मेरे जीटीओस में देख लो स्ट्रक्चर एनालिसिस। आप लोगों को एयरफोर्स के वीडियोस में बाकी वीडियोस से कोई फर्क दिखता है? एयरफोर्स वीडियो लोग देखने में थोड़ा प्रेशर आता है, बिकॉज सोचना पड़ता है, उनको आपके अंदर का डेल्टा दिखता है, बट आई थिंक आपको दिखना चाहिए, तभी तो आप उसको ब्रिज करोगे। मीठा मीठा बोल के हमारे पास आ जाओ, हर गधे को हम घोड़ा बना देंगे, हम गॉड ऑफ एसएस भी है, ऐसे सब तो बोल के बेवकूफ बना रहे हैं ना। डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, कैसे ड्रामा बना दो। एनीवे, so operation Meghdut is an important operation, and Siachen glacier is extremely important। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, लद्दाख में कहाँ पे, ऊपर क्या है, इसका क्या हिस्ट्री है, कार्टोजेनिक एग्रेशन क्या होता है, इंडिया को कैसे डिटेक्ट हुआ, पाकिस्तान लेट हो गया, अगर पाकिस्तान एक हफ्ते पहले कुछ करता तो आज वो बैठे होते, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको होल्ड करने से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को हम क्या कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप मुझे बताओगे। एक ऑपरेशन है 84 का ही, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। फोटो गलत लगा हुआ है, ये फोटो मैं चेंज करने में गलती होगा, फोटो यहाँ पे ब्लू स्टार में बताना कौन सी फोटो लगनी चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट में। तो इसमें ये जो दिखा है गोल्डन टेम्पल, फौज को इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में, उस टाइम जनरल वैद्या थे इंडिया के आर्मी चीफ। खालिस्तान मूवमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था जिसके कारण अमृतसर का गोल्डन टेम्पल में एक शख्स था, का नाम है भिंद्रावाले, उन्होंने आर्म्स डाल दिया, बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुए, और उसको फिर क्रश करने के लिए आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट करना पड़ा, जिसमें कि जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल उसका अकाल तख्त वाले को भी डैमेज हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, और भिंद्रावाला जी को तो मार दिया, लेकिन सिखों का सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुआ इसमें। एंड इसका नतीजे में जो जनरल वैद्या थे आर्मी चीफ, इनको सब्सिक्वेंटली पोस्ट रिटायरमेंट पुणे में हेडक्वार्टर सदर्न कमांड के ऑफिस के पीछे के एरिया में असैसिनेट कर दिए गए। उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ वहां पे, प्लस इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनको उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने असैसिनेट कर दिया सब्सिक्वेंटली, जिसके बाद में एक बहुत ही टर्बुलेंट फेज हुआ था, खासकर दिल्ली एरिया में, जहां पे बहुत सारे सिखों को मार दिया था बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी के डेथ में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। एक स्टेटमेंट बोला था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत नुकसान करता है, कहने का मतलब आप इंदिरा गांधी को मारोगे नुकसान तो होगा, समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था उसमें, परमिशन था कि करो। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बैड फेज पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो
इसको देख लेना। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑपरेशन दैट आर्म फोर्सेस हैड टू डू। आज भी खालिस्तान मूवमेंट का कनाडा से आवाजें आती है, लेकिन टुडेस खालिस्तान मूवमेंट, इसमें हमारे पंजाबी भाई इन्वॉल्व नहीं है, दे डोंट सपोर्ट इट, बट इसमें सीएए का, कनाडा का, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इसमें तो था ही था। बट अभी जो आवाजें उठ रही है उसमें आपने कुछ नाम सुने होंगे, कनाडा में कुछ कुछ होता रहता है, यूएस में कुछ कुछ होता रहता है। अभी यूएस वाले सीआईए लगा हुआ है, एक इंडिया ने उसको मारने का कोशिश कर रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट दिस ऑपरेशन वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट में, राइट। सो ये गोल्डन टेम्पल के अंदर का सीन है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अनफॉर्चुनेटली आवर हिस्ट्री हैज दिस इवेंट इन दिस। सो कमेंट लिख के बताना फोटोग्राफ गलत है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कैक्टस। मुझे बताना ऑपरेशन कैक्टस कहां पे हुआ था। अगेन फोटो गलत है, मैं फोटो चेंज करना भूल गया। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में हुआ था। मालदीव्स में कू हुआ था तख्ता पलट का। तो मैं जानना चाहूंगा इस कू में कौन इन्वॉल्व थे और इसमें कौन किसको पलटी मार रहे थे। हाउ डिड इंडिया गॉट इन्वॉल्व, किन और कंट्रीज को वहां के प्रेसिडेंट साहब ने कॉल किया था मदद के लिए। एक तो हमारे पड़ोसी थे, मना कर दिया, इंडिया को कॉल किया, फटाक से पहुंच गए। सो दिस वाज एन ओवरसीज ऑपरेशन जहां पे मालदीव्स को एक मिलिट्री कू से बचाया था। और आज वही मालदीव का प्रेसिडेंट जो है इंडिया को इंडिया आउट बोलते हैं। हमारे 75 सोल्जर्स जो उनकी मदद के लिए तो उनको अलग कर दिया। तो आप देखना कि अभी रिसेंटली वो विजिट पे भी आए थे, तो मालदीव्स आप देखोगे यहाँ पे इंडिया के इतने नजदीक है ना। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे अभी चाइना भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट साहब है वो चाइना के बड़े आशिक थे। इंडिया आउट कैंपेन पे वो सेलेक्ट होके आए थे। और बाद में आपको पता है मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए थे कुछ कमेंट मार दिया था, जिसके कारण इंडिया ने मालदीव्स को बाइकआउट कर दिया था। बहुत सारे इश्यूज हुए थे रिसेंटली, सब आपके टाइम का है। सो ऑपरेशन कैक्टस किस लिए था, मालदीव्स का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद मालदीव्स के बगल में एक लक्षद्वीप है, उसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो वो सब अपडेट करना, उसको कमेंट लिख के बताना। सो मालदीव का को अटेम्प्ट में भी ऑपरेशन कैक्टस है ना। तो दिस वाज ए आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक कंबाइंड ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस, राइट। कमेंट लिख के बताना। इसके अलावा एक ऑपरेशन रक्षक था जो कि 91 से 94 तक प्रोमिनेंटली था। ये जेएनके का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। पाकिस्तान का जब कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत पाए तो उन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट पॉलिसी, टेररिज्म को लाए। तो ये उस टाइम था जब पीक टेररिज्म पे था, और उस टाइम पे ऑपरेशन रक्षक, तो ये आप देख लेना ऑपरेशन रक्षक क्या है ना। सो दिस इज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। आर्मी के दो रोल है, प्राइमरी रोल एंड सेकेंडरी रोल। तो ये सेकेंडरी रोल में आता है, काउंटर इंसर्जेंसी, CICT बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशन रक्षक आप चेक कर लेना, देख लेना, अपडेट कर लेना। एंड ऑल फौजी शुड नो दिस, बिकॉज हम लोग सब जो फौजी लोग हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आर्टिकल अपना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी कहीं ना कहीं इसको लगता है इन एरियाज में, ताकि हम अपने इन ऑपरेशन को कर पाए। तो इसके अलावा तो हमने क्या क्या देखा, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन रक्षक एंड ऑप पराक्रम। मैंने ऑप पराक्रम, मेरे ख्याल से स्लाइड छूट गया। ये इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट अटैक किया था 2001-2002 में, और उस टाइम की गवर्नमेंट ने मोबिलाइज तो कर दिया, पूरी फौज को लेके 6-8 महीने पाकिस्तान के बॉर्डर पर डाल दिया, लेकिन घुसे कुछ नहीं। वो उरी हमने बाद में किया। तो उस टाइम की गवर्नमेंट थोड़ी ढीली ढाली बोल लेके कि क्रॉस नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने आपके पार्लियामेंट में अटैक कर दिया। बट वो एक मेजर मिलिट्री मोबिलाइजेशन था, ऑपरेशन पराक्रम। सर्विस एंट्री को पता होगा, नहीं पता तो देख लेना, है ना। इसके अलावा कुछ और नोटेबल ऑपरेशन जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व था वो मैं दिखाता हूं। एक है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बताना ये क्या है। ऑपरेशन शक्ति, ये क्या है बताना।
उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब आपके टाइम का है, एंड ऑपरेशन बालाकोट। कमेंट लिख के बताना ये फर्स्ट दो क्या है, और सेकंड दो ये इंडिया के पाकिस्तान को लेके जो पॉलिसी है उसका शिफ्ट है, और ये शिफ्ट था ऑपरेशन पराक्रम में। हम रेत में लेटे रहे, यहां पे हमने एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मार के आए। तो लीडरशिप चेंज, पॉलिसी चेंज, है ना। सो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था 1974। तो मुझे बताना उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वैसे फोटो में है, उस टाइम का क्या था, आर्म फोर्सेस का क्या रोल था, इट इज वेरी सीक्रेटिव। इसके बाद इस स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया के ऊपर बहुत सैंक्शन भी लगे थे, क्या था और ये क्यों जरूरी था ये करना, और यहां से इंडिया का न्यूक्लियर हिस्ट्री शुरू हो जाता है। मतलब होता तो शुरू से, बट यहाँ पे फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट टेस्ट किया गया था। एंड कमेंट लिख के बताना इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेज में आ गया, इसका रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया। उसके बाद ऑपरेशन शक्ति इज सेकंड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट। इसके ऊपर एक मूवी भी बना परमाणु, तो इसमें मुझे बताना ये कौन है, ये फोटो में ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तीनों को बताना कौन है, बीच में कौन है, इधर कौन है और यहाँ पे कौन है ना। इसको चेक कर लेना, थोड़ा अपडेट करना, बिकॉज ये आपके न्यूक्लियर हिस्ट्री में आएगा। और इसमें ये क्योंकि ये तो न्यूक्लियर ब्लास्ट है, तो इसमें आर्म फोर्सेस का क्या रोल है वो आप चेक करना, ठीक है ना, कमेंट लिख के बताना। इसके अलावा उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्यों करना पड़ा, और इसको करने से इंडिया का पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया। उसके बाद था, अच्छा ये मूवी भी आपने देखा होगा, हाउस द जोश वाला, उरी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन बालाकोट, जिसमें कि इंडिया के 10-12 प्लेन्स, फाइटर प्लेन जाके बालाकोट में जाके कुछ टेररिस्ट कैंप को उड़ा के लाए थे। कमेंट लिख के बताना ये बालाकोट स्ट्राइक क्यों करना, किस इवेंट के रेस्पॉन्स में करना पड़ा। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या हुआ, समझ गया ना। द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, यहां से शुरू हो गया, यहां से क्या, उरी से शुरू हो गया ना। और इस इवेंट में एक प्रोमिनेंट नाम भी उभर के आया था, तो ये कौन है, विंग कमांडर साहब, किस लिए इनका नाम हाईलाइट हुआ था, ये क्या प्लेन उड़ा रहे थे, उस प्लेन के टेक्निकल फीचर्स क्या है, और इन्होंने किस प्लेन को उड़ाया और इनके साथ क्या हुआ, और फिर ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, क्या इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल है, और इससे इंडिया पाकिस्तान का करंट रिलेशनशिप को क्या दिखाता है। 71 वॉर के 54 पीओडब्ल्यू को आज तक पता नहीं चला वो कहां चले गए, लेकिन ये बंदे को रात एक दिन के अंदर ही वापस कर दिया। क्यों वापस किया, कौन है ये, अभी क्या कर रहे हैं। तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, काउंटर इंसर्जेंसी एंड पीस कीपिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ह्यूमैनिटेरियन, अदर नोटेबल ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग, मेजर मिलिट्री ऑप्शन। हमने बीच के दो नहीं किए, यूएन पीस कीपिंग एंड मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किया। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी अलग से बना दूंगा, पीस कीपिंग एंड मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज। ना भी हो तो आप करो, चाहिए तो आप कमेंट लिख के मुझे बताना कि क्या इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ, एक जनरल डायरेक्शन मिला। इसको अच्छे से करो, आपका इंटरव्यू में बहुत फायदा मिलेगा। सोच कर देखो, जब आपसे पूछेगी टेल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी सर आई डोंट नो, एंड यू शो योर डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज। इंटरव्यू में उससे वैसे ही आपको बोलेगा बंदे में दम तो है, बजाय कि सॉरी सर आई डोंट नो, टीएटी में उलझे हुए, बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट, डू पोस्ट योर कमेंट्स। छोटे छोटे कमेंट्स मांग रहा हूँ, डालो, बिकॉज कमेंट्स जब मिलेगा तब मुझे पता चलेगा कि इट इज हेल्पिंग यू, है ना। एंड उसके अलावा एयरफोर्स का नेक्स्ट ऑफलाइन बैच 11 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक है, 2 वीक्स का, फुली रेजिडेंशियल बैच। रिपोर्टिंग इज ऑन 10th of November, और आप वापस 23rd को आफ्टरनून या 24th इवनिंग, 24th संडे को अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हो। इसको रजिस्टर करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज द इंस्टीट्यूट एड्रेस एंड दिस इज द नंबर ऑन व्हिच यू व्हाट्सएप मी 9090099035 ना। फर्स्ट 25% को 2500 का स्ट्रेट डिस्काउंट है, डू शेयर विद द फ्रेंड्स।
एंड जरूर कमेंट लिख के बताना, आर दीज वीडियोस हेल्पिंग यू, शुड आई कंटिन्यू दिस सीरीज, या आपको लगता है कि अब आप आगे कर लोगे, जरूर बताना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।